Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Today, in history section, we will learn the Mauryan Empire, chapter number 8. In this Mauryan Empire, we will study about the first founder of the Maurya Empire, who found Mauryan Empire, and after which dynasty the Maurya Empire was established. Okay, and who were the main kings of the Mauryan Empire? Arguably the largest empire to rule the Indian subcontinent, the Mauryan Empire spanned an area of more than 1 million square miles. The two main sources of information on the Mauryan period are Indica, written by Megasthenes, and Arthashastra, written by Chanakya. Chandragupta Maurya was the founder of the Mauryan Empire. In 297 BCE, Chandragupta Maurya handed over the throne to his son Bindusar and became a Jain ascetic. Bindusar ruled for about 25 years from 297 to 273 BCE and was succeeded by his son Ashoka the Great. The bloodshed in Kalinga War grieved Ashoka's heart deeply. He decided to give up warfare and conquer the hearts of people with love. He engraved his Dhamma on rocks and pillars in the language of the common people so that they could read it easily. He set an example for the people and followed ahimsa. So, let us start our reading. Between the year 322 BCE and 185 BCE, India saw the growth of large and powerful empires. Empires are large kingdoms that grew because of ambitious ruler and the rich natural and economic resource that these regions had. So students, from this line we come to know that between यानी कि 322 BCE से लेकर 185 BCE तक जो भी किंगडम बना वो बहुत ही डेवलप और बहुत ही पावरफुल एम्पायर हुए, किंगडम हुए, क्योंकि उनके जो राजा थे वे बहुत ही एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी थे, और तो और उस राज्य के आसपास की जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो भी बहुत ही अच्छे थे, और साथ में इकोनॉमिक रिसोर्स यानी कि जिससे हम कमा सके, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस उस ज़मीन पे पाए जाते थे। तो उस समय का जो राज्य हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो है मौर्यन एम्पायर, और उसके जो फर्स्ट रूलर हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। Chandragupta Maurya was the founder of the Mauryan Empire. His rise to power came with the help of his most trusted minister and chief advisor, Chanakya, also known as Kautilya, in 321 BCE. तो यहाँ पे कौटिल्य या चाणक्य, उसके बारे में बताया है कि उनकी मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर जो है इस्टेब्लिश किया। वो उनके
जो है मोस्ट ट्रस्टेड यानी कि बहुत ही विश्वासु मंत्री और एडवाइज़र भी रहे। तो उन्होंने किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को हेल्प करी वो हम आगे देखेंगे। हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ पाटलिपुत्र established a strong base for the Mauryan Empire. We know about the region of Chandragupta in great detail from a Greek ambassador Megasthenes in his book Indica. तो इस तरह से आगे बता रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को स्ट्रॉन्ग बनाया, इस्टेब्लिश किया और इस तरह से मौर्य एम्पायर की स्थापना करी। और ये बात जो है चंद्रगुप्त की जो हमें डिटेल्स उसके बारे में जहाँ से हमें पढ़ने को मिलता है वो किताब है इंडिका। और उसको किसने लिखा? एक ग्रीस के एम्बेसडर मैगस्थनीस ने लिखा है। तो हम कह सकते हैं कि 321 BCE में कौटिल्य या चाणक्य उनकी मदद से पाटलिपुत्र को जीतकर जो है उन्होंने मौर्य एम्पायर, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये चंद्रगुप्त उनका नाम था। ऐसा कहा जाता है कि जो चाणक्य है वो पहले नंदा डायनेस्टी के थे और बाद में उन्होंने नंदा डायनेस्टी के राजा धनानंद को छोड़ दिया। तो बाद में वो चंद्रगुप्त के पास आए और चंद्रगुप्त को मदद करी और चंद्रगुप्त को मौर्य एम्पायर बनाने में हेल्प किया, जो हम आगे के पैराग्राफ में पढ़ेंगे। तो अब चाणक्य कौन थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। Chanakya was previously a minister to the last of the Nanda rulers. He is regarded as a great political thinker and an economist. His politics have been compiled in his book अर्थशास्त्र। तो इस तरह से चाणक्य है वो नंदा डायनेस्टी में पहले रूल करते थे या उनके वो एडवाइज़र थे और वो एक बहुत बड़े थिंकर भी थे और इकोनॉमिस्ट यानी अर्थतंत्र को चलाने के लिए जो नीतियाँ होती है, नीति बनाते हैं, उनको कहते हैं इकोनॉमिस्ट। तो उन्होंने ये जो पॉलिटिकल अर्थतंत्र की थ्योरी, नीतियाँ जो लिखी वो उनकी किताब है अर्थशास्त्र, उसमें भी हमें देखने को मिलती है। इस तरह से नंदा डायनेस्टी को छोड़कर कौटिल्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मदद करी और मौर्य एम्पायर बना। नाउ वी विल रीड बिंदुसारा। बिंदुसारा, Chandragupta's son, succeeded him to the throne. He has been attributed with conquering almost the entire Indian peninsula like his father Chandragupta Maurya. तो यहाँ पे ये बताया है कि चंद्रगुप्त के जो बेटे थे बिंदुसारा, उन्होंने भी अपने पिता की तरह यानी कि चंद्रगुप्त की तरह लगभग सारा इंडियन पेनिनसुला यानी कि इंडिया पूरा कंट्री और उसके आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं वो सब पेनिनसुला में आता है। तो वो लगभग जीत लिया था अपने पिता की तरह ही। और तो और बिंदुसारा मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विथ द ग्रीक। He was tolerant to all religion and many saints visited his empire during this time. और वो वीर तो थे ही, उन्होंने बहुत से इंडिया के जो हैं पार्ट्स सारे कॉन्कर करके अपना किंगडम बना लिया था, मगर साथ साथ में वो रिलीजियस पर्सन भी थे। सारे दूसरे रिलीजन को भी वो बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे
और उनके समय में जो है बहुत सारे सेंट आए थे उनके किंगडम में और विजिट किया था। और तो और दूसरे बाजू के जो ग्रीक कंट्री था उनके साथ भी उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन था। तो इस तरह से वो ब्रेव भी थे और रिलीजियस और काइंड पर्सन भी थे। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज अशोका, regarded as one of India's greatest ruler. Emperor Ashoka ruled almost entire Indian subcontinent. He has been called Ashoka the Great. और बिंदुसारा के बाद जो उनके पुत्र अशोका आए वो अशोका द ग्रेट कहलाए और उन्होंने भी अपने पिता की तरह ऑलमोस्ट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया के अलावा जो भी कंट्रीज़ आती है उन सब पर भी उनका बहुत होल्ड था और इंडिया में लगभग सब जगह पर उनका एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया था। जैसे कि आप पेज 66 में भी देख सकते हो कि मौर्यन एम्पायर कितना एक्सपांड हुआ है। जहाँ जहाँ पे भी पिंक कलर आपको दिख रहा है वहाँ पे सारी जगह पे मौर्य एम्पायर था। खाली साउथ में थोड़ा सा, ईस्ट में थोड़ा सा और नॉर्थ में थोड़ी सी जगह है जहाँ पे उनका एम्पायर नहीं हो पाया था। तो इस तरह से अशोका द ग्रेट कहलाए। ड्यूरिंग हिज फादर रीजन अशोका सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन एंड वेंट ऑन टू बिकम ए एम्परर इन 268 BCE। और जब वो राजा बने अपने पिता के बाद 268 BCE में, उससे पहले वो तक्षशिला और उज्जैन नाम के जो किंगडम्स थे वहाँ पर उन्होंने एज ए गवर्नर जो काम किया था। अशोका वॉज ए वेरी एम्बिशियस रूलर एंड use military strength in order to expand the empire। और इस तरह से वो भी अपने पिता की तरह बहुत ही एम्बिशियस इच्छा रखने वाले थे और वो पूरे भारतवर्ष में अपना राज्य फैलाना चाहते थे। तो इस तरह से वो मिलिट्री स्ट्रेंथ के साथ जो है अपने एम्पायर को एक्सपांड करते थे। ही लॉन्च ब्रूटल वार which lasted for around 8 years till the Kalinga War, which changed his life। और इस तरह से वो इतने बहादुर थे कि उन्होंने लगातार 8 साल तक लड़ाइयाँ लड़ी और जो है भारत में अलग अलग राज्य जीतते गए। लास्ट में उन्होंने कलिंगा वार लड़ा जिससे उनकी पूरी लाइफ ही बदल गई और बाद में उन्होंने कभी लड़ाई नहीं लड़ने का मन में वो यानी कि संकल्प ले लिया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज कलिंगा वार। कलिंगा वॉज ए किंगडम इन कोस्टल ओडिशा, प्रेजेंट डे ओडिशा। तो इस तरह से कलिंगा है वो उड़ीसा के समुद्र के तट पर राज्य था। द वार ऑफ कलिंगा टर्न आउट टू बी एन इनफेमस बैटल। और वो इतिहास में बहुत ही दर्दनाक जो है जिसमें बहुत ही इनफेमस हुआ वो मतलब उसकी बहुत ही आलोचना हुई। क्योंकि ओवर 1 लाख पीपल ऑफ कलिंगा एंड मोर दैन 10,000 सोल्जर्स ऑफ अशोका डाइड इन द वार। और इस लड़ाई में कलिंग राज्य के 1 लाख से भी ज़्यादा सिपाही मरे और अशोका के 10,000 के करीब। दिस वार वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन अशोकाज लाइफ। और इस तरह से उनकी लाइफ बदल गई। उन्होंने सोचा कि इतने सारे लोगों की मृत्यु के बाद अगर मुझे कलिंग राज्य मिलता है तो भी क्या काम का। और इस तरह से उन्होंने सोचा कि ही फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस ऑफ सो मैनी लाइव्स एंड डिसाइडेड टू रिनाउंस वार। और इस तरह से उन्होंने सारे लोगों की मृत्यु का जवाबदार अपने आप को माना और इस तरह से उन्होंने
लड़ाई कभी नहीं लड़ने का वादा किया। He devoted the rest of his life to अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, और बाद में पूरी लाइफ उन्होंने नॉन वायलेंस को फॉलो किया। एंड कन्वर्टेड टू बुद्धिज़्म, और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोका रूल्ड फॉर 40 years आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा इन पीस, हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी। और इस तरह से कलिंग के वार के बाद वे 40 साल तक जिंदा रहे, और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को फैलाया, और बौद्ध धर्म को ही जो है उनके बौद्ध धर्म के बहुत अलग अलग विहारास और बौद्ध धर्म की बातें उन्होंने केव्स में, रॉक पर और अलग अलग जगह पर लोकल भाषा में यानी कि लोगों की भाषा में, प्राकृत भाषा में लिखवाया, और उन्होंने जो है बौद्ध धर्म का बहुत ही जो है फैलावा किया। और बाकी की सारी लाइफ उन्होंने शांति से और अपने देश को बहुत ही समृद्ध बनाकर लोगों के कल्याण के लिए